Tirap District. Simpson, most respected learned DDSC Tirap, Semati Kesiloncha, most respected all the learned resource persons from General Hospital, Konsa, Sri Dr. K. Sosia sir, the most respected resource person, Advocate Nakap Mate, most respected the inspiring counselor, who is none other than Mr. J. Dikha, coming from Kermi Home Rehabilitation Center, Charju, DPC, ISC, Sri T. Tangjang sir, all the learned teachers coming from various secondary school and higher secondary school of Tirap district, media coming from media IPR, Sri Sumpa sir, and all the beloved students coming from various secondary schools and higher secondary schools of the districts. Sir, as you are aware that the academic session is on the last part of this session, which is this day is the exam period. Even though as per the direction of the Directorate, Government of Arunachal Pradesh, we are conducting these awareness programs. So very meaningfully we are conducting. So for your information about today's program, so whatever we have taken up today's activities before reaching, we want to show you in a very short slide, technician Nasan, please. Then followed by the essay writing competition as a part of the awareness programs. So it is already done the evaluation. It is very soon to be declared the district winners. So we'll show you the details, sir. And then which was followed by the 3 resource persons, key resource persons, who have delivered their valuable points with PPT, and the participants were really enthusiastic on their topics. So they have learned many things. I hope they will use those things they have learned from today's program in their labs, and they will contribute in their respective societies in days to come. So the drugs menace, the drugs abuse it is really challenging in every society. That's why government, we should give thanks to the government who is sponsoring, who is encouraging to do such activities, and also the government encourages the youngster, the students, especially secondary level and the higher secondary level, to educate, share the education for the sake of the society, for the sake of their young ones and species. We would like to felicitate from the organizing team, which is Integrated Scheme for School Education ISSA Tirap. So, as a token of, we have arranged a very small. Now, we also like to felicitate our agency man as a token of love. So, man, please accept our small donation as a token of love. We receive a small token of love. Thank you, ma'am. We also like to felicitate our resource person. So, Dr. Sosia sir, please accept our small gift as a token of love. Thank you, sir, for accepting us. And next is Advocate sir, please accept our. program ini upaya sesungguhnya आज तो next is our
Nihal sir. Sorry, sir. Accept us. Now, we also would like to felicitate our Sumpah sir from my prayer. So, for this. I'd like to request our DPC sir to accept our small gift as a all the secretaries right from लग जाता है, अपना जिम्मेदारी को वो निभाने नहीं लगने लग जाता है, सब तरफ से खत्म होके रहने लग जाता है। तो इसलिए ये चीज जो हम खुद एक्सपीरियंस ये देखा है कि हम जब हाई स्कूल से हम जब क्लास 12 में था, जब हम सेकेंडरी स्कूल में हम जब पढ़ाई कर रहा था, मेरा अभी भी हमको याद है ऐसे ही कुछ महीना चल रहा था, यही फाइनल एग्जाम होने को जा रहा था 11 का। तब जब ईटानगर जाके आए, पढ़ाई करने के लिए वापस आए, सेमिस्टर से फेल हो गए हैं, क्योंकि वो समय में फर्स्ट सेमिस्टर तो हम लोग पुराना पहले से दोस्त था, पहले से अल्कोहल वगैरह लेता था स्कूल में, पिकनिक में फुटबॉल खेलने जाएगा, कुछ खेलने जाएगा, तो वहाँ में अल्कोहल सब यूज करता था। तो जब ये चीज जो है नया चीज जब देखने को मिला है तो बहुत ही क्यूरियोसिटी था कि क्या चीज होता है, लेट्स ट्राई ना, एक बार ट्राई करके देखिएगा। हम पहले बोला है, हम खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग सोचता है, हम मर्द नहीं सोचता था खुद को कि हम कभी नहीं रोएगा और मुझे कभी दर्द नहीं देगा और मुझे कभी कुछ नहीं होगा। लाइफ को लेके सीरियस तो था, लेकिन इट्स ओके, हम मतलब वो मुकाम हम वापस फिर हासिल कर लेगा। तो वैसा करके ट्राई करके उस चीज को लेते लेते जैसे तैसे हाई स्कूल को क्रॉस किया, हाई स्कूल को जैसे तैसे सेकेंडरी लेवल को पार किया है। वो भी पदों को सौंपे बने 100 या 50 रुपये देता है, तो 50 रुपया और 100 रुपये में जो मिलता है वही चीज कोई लोग नशा करने भी लगते हैं, जैसे कि तंबाकू हो गया, गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, छोटा छोटा चीज जो नशा करते हैं, वो लोगों को लगता है कि ये नशा जो है कुछ नहीं है, एक डिपेंडेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन यही चीज इसी नशा से उसको कहाँ तक पहुंचा सकता है, ड्रग्स तक पहुंचा सकता है, वो उसको वो इमेजिन भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि कुछ नहीं है, हम बस गुटखा खाता है, हम सिगरेट पीते हैं, हम कभी कभी हम पान मसाला खाता है, हम कभी ड्रग्स तक तो और अल्कोहल तक तो नहीं पिएगा। हर एक नशा में लड़ रहा है, एडिक्शन में बेचने वाला इंसान जब देखता है तो समझता है और हम भी तो नशा ऐसे ही किया था। क्योंकि आज के दिन में हम सोचते हैं कि मेरा साथ में सिर्फ ऐसा हुआ है, लेकिन आज के दिन में 100 से 99% आदमी सब यही चीज बोलता है, हाँ हम तो ड्रग डायरेक्ट नहीं पिए, हाँ हम तो बस दारू डायरेक्ट नहीं पिए, धीरे पहले नशा जो है बीड़ी से, घर का पैसा 10 रुपये चोरी किया, बाहर भी चोरी किया, घर से छुप छुप के पिया। तो नशा चीज जो है एक सीमित तक कभी नहीं रहता है, वो अपग्रेड होते रहता है, बढ़ते रहता है। उसी तरह आज के दिन में आता है तो धीरे धीरे 300 रुपये का पीने लग जाएगा, धीरे धीरे नशा बढ़ते रहेगा तो चोरी करने लग जाएगा, झूठ बोलने लग जाएगा, डाका डालने लग जाएगा और क्राइम और बड़ा क्राइम करने लग जाता है। सुबह यहाँ 8 बजे ऐसा को पहुंचा है, तो हम मेरा घर में कुछ काम था, तो ज्ञातल का बाद है हम अपना दादी माँ को हम हॉस्पिटल लेके गए है, तो हम गैरेज में गाड़ी थोड़ा ठीक करवाने के लिए हम बैठा हुआ था, तो उसमें एक इंसिडेंट हम मेरा देखा है जो हम आज के दिन में हमको लगता है कि ये गलत किया है और हमको ये चीज़ बताना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ बैठ रहा था एक आदमी आया गाड़ी बनाने के लिए, पूरा हत्ता कत्ता था, हाँ दाढ़ी वाला था, मूछे वाला था, उसका में हाथ में पूरा गुदरक्स पहना हुआ था, इधर गुदरक्स पहना हुआ है, माथा में बाल लंबा है, दाढ़ी है, उधर टीका लगा के वो बंदा जो है वहाँ में गाड़ी बना रहा है, और गाड़ी में जो मैकेनिक लोग है वो अंडर एज है, अंडर एज मतलब छोटा लड़का है, बोलने से भी 22, 21 एज का है। वो लोग गाड़ी बना रहे हैं और वो बंदा जो है साउंड सिस्टम कुछ बना रहा है, वो खड़ा होके पेपर में कुछ रैप कर रहे हैं, पेपर में, क्योंकि हमको पता है वो गांजा पीने के लिए कर रहे हैं, वो पेपर रैप कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, पेपर रैप कर रहे हैं, हम भी उधर चेयर में बैठ के देख रहे हैं, मैंने वो क्या कर रहे हैं, वो पेपर रैप कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका पॉकेट से निकाला, पॉलिथीन में डाला है, उसका बनाया, उसको वो पकड़ के बहुत शौक से आगे पीछे घूम रहा है,
वो बच्चा लोग देख रहे हैं उसको, जो काम करने वाला बच्चा लोग है उसको देख रहे हैं। उसने ऑफर नहीं किया, बेगा क्या नहीं बोला, वो लड़का लोग बना रहे, वो बात भी कर रहे कि ऐसा बना वैसा बना। वो धीरे से वो चुपके से साइड का दुकान का साइड में चला गया। वो बंदा जो है, जो बोलने वाला जो है, वो बाबा जी का भक्त था होगा, लेकिन वो जो है गंजा को रोल करके वो साइड में चला गया। और बच्चा जो बना रहे, हम दूर से देख रहे हैं वो लोग का एक्टिविटी, लोग हम देख रहे हैं। तो वो बच्चा जो है साइड से बोलता है कि हमको एक तो चाहिए, हमको भी थोड़ा धोखा होगी। तो वो इतना मतलब एक बच्चा जो है अभी 22-23 ईयर्स का, अभी उसको गंजा का बारे में मालूम ही नहीं होता हो, लेकिन उसको फिल्म में देखा है, टीवी में देखा होगा ऐसा पीता है। तो वो बंदा जो है उसका साथ थोड़ा फेमिलियर हो गया। मैंने दोस्त से ऐसा बात करने लग गया, ऐसा काम पूरा भाया है, कुछ मतलब गुटखा ले रहे, सिगरेट ले रहे, ऐसा करके काम करा रहे हैं। तो वो बंदा जो उसका दोस्त हो गया, बारात कोई होता तो उसको दम भी नहीं होता उससे मांगना, लेकिन उसका दोस्त ऐसा लग रहा है, कलीग ऐसा लग, तो उसने दूर से इशारा किया, गाड़ी के अंदर में गाड़ी बना रहा है, उसका मालिक अंदर बैठ रहा है, वो बोल रहा है हमको भी एक दो पफ चाहिए, एक दो सुता हमको भी चाहिए बोल के वो दिखा रहा है। तो देखते देखते कब चला गया, उधर पहुंच गया पता नहीं है। उसके बाद में मेरा गाड़ी में एक लड़का बना रहे, तो उसमें आया, तो दिखा रहे हाथ में ऐसे दिखा रहे, ऐसे हाथ से ऐसे दिखा रहे, मतलब देखो मुझे क्या मिला ये। तो वो अपना दोस्त, वो दोस्त बोलता है रखो बाद में टाइम मिलने से साथ में मारेगा वो। लेकिन ये चीज, ये इंसिडेंट हम इसलिए बता रहे कि वो समय में हम क्यों एक्शन नहीं लिए, हमको बहुत खराब लगा है। हम पूरा आज घर से यहाँ आ रहे हैं ना, हम वही चीज सोच रहे हैं, हमको वहाँ प्रोग्राम अटेंड करना है, और ये चीज जो है हम क्यों नहीं बोला है। हम वो समय में उसको बोल सकता था ये चीज आप पी रहे तो आप क्यों उसको बच्चा को देना है, आप क्यों करना है। यही चीज जो है हम सब में है, ये खराबी जो है, हम लोग गलती करता है, हम आता है, हमको तकलीफ लगता है। और वो जो है ड्रग्स जो है कोई बर्मीज आके बेच रहे यहाँ में बोल के नहीं है, कोई अमेरिका से आके कोई गंजा पिला रहे बोल के नहीं है। ये हम लोग का बीच का आदमी लोग ही है, कोई ना कोई हम लोग का रिलेटिव ही है, हम लोग का परिवार में से कोई है। और वो चीज़ जो है हम लोग छिपा रहे हैं, हम लोग उसको बता नहीं रहे हैं, हम लोग चुपचाप भी रहे। इसका वजह से कल का दिन में कोई एक नया अच्छा घर का बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता होगा, आप लोग का दोस्त आप लोग का साथ में भी हो सकते हैं, नहीं तो कल का दिन आपका बच्चा का साथ भी हो सकता है। तभी आप और हम आके ये चीज़ बोलने से, या हम आके ऐसा बोलेगा, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है जब तक हो जाता है तब। तो इसीलिए मेरा दिल से सबको रिक्वेस्ट है कि आज जो हम लोग ये प्रोग्राम में अटेंड हुआ है, सिर्फ एक भैया आया था, हाँ वो ड्रग्स यूज किया था और ड्रग्स छोड़ दिया था, और आज का दिन वो काउंसिलर है, ये है वो है, सिर्फ नहीं होना चाहिए। आज के दिन में हम एक इतना तकलीफ, हम एक नरक के साथ में कंपेयर कर रहे हैं एडिक्शन को, वो चीज को आप लोग थोड़ा फील करने के लिए कोशिश कीजिए। और आप लोग ये चीज को कभी मजाक में हो या कभी इंजॉयमेंट में हो, ये चीज को कभी ट्राई मत करो, और हमेशा दूर रहो ये ऐसा दोस्त लोग से। बहुत अच्छा दोस्त आप लोग को आगे में मिलेगा, फ्यूचर में आप आदमी बन जाएगा, आपको बहुत ही बेस्ट फ्रेंड आप फिर बना सकते हैं। अगर आप ऐसा दोस्त बनाएगा जो खराब है, वो आपका लाइफ को पूरी तरह से वो मिट्टी का धूल में मिला देगा, और वहाँ से फिर उठ के आना इम्पॉसिबल है, हर किसी का बस का बात नहीं है। क्योंकि आज का दिन में बहुत सारा फैमिली लोग फीडबैक देता है, मेरा बेटा को रिहैब में रखा है सर क्यों ठीक नहीं हुआ है। कोई रोता है फोन करके हमको रात को, मेरा बेटा अभी ड्रग्स पी के आया है, वो चिल्ला रहा है, पैसा मांग रहा है, कल से नहीं पिएगा बोल के, ऐसा बहुत सारा सुनने को मिलता है। तो इसीलिए ये चीज जो है, एक पीने वाला माँ और हम लोग और एक एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग सिर्फ करने से, हम लोग ठीक कराएगा और पुलिस पकड़ेगा और ये अवेयरनेस करते रहेगा, वो फायदा नहीं है। जब तक हम लोग आज का दिन में आप सबका मम्मी पापा आप लोग पास में जाके बोलिए, आप लोग का दीदी बहन को बोलिए, भाई भैया को बोलिए कि ऐसा लड़का आया था रिहब से, जो वो नशा किया था, उसने बताया उसका लाइफ जो है बहुत तकलीफ से गया है, और बहुत तकलीफ से आज का दिन तक जीने के लिए कोशिश कर रहा है। और हर कोई रिहब में बैठने वाला रिहब से निकल के ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि सोसाइटी में आज का दिन तक सपोर्ट नहीं है। हर जगह में ड्रग्स मिल रहा है, हर जगह में अल्कोहल फ्रीली कंज्यूम करने के लिए परमिशन दिया हुआ है, हर कोई कुछ नहीं बोलता है, इग्नोरेंस है, जिसका कारण आज के दिन में रिहब वाला सिर्फ काम करके भी फायदा नहीं है। हम हर एक इंडिविजुअल आदमी ही आना पड़ेगा, तभी ये चीज़ को हम लोग अपना दिमाग को
ऐसे होल अरुणाचल इंडिया हम लोग ठीक कर पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं। और कल का दिन में, आज का दिन में 10 है, कल का दिन में 1000 हो जाएगा। इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। और मेरा जो बात आप लोग पेशेंटली आप लोग बैठ के सुन पाने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स। और इंदा में ख़त्म करेगा। थैंक यू एवरीवन। It is time for prize distribution to the winner. So I'd like to request our chief guest sir to distribution of the prizes. So sir, and Vijay Sinha. So the third prize in the essay writing competitions is Miss Jessica K. Motsa from Government High Secondary School, Guamali. So the prize is cash rupees 4,000 with certificate. देखिए यह देखिए। Okay, thank you. Now the second prize, Miss Anandi Rai from Government High Secondary School, sponsor. Cash prize rupees 6,000 with certificate. यह देखिए। हेलो मैडम ना सुकर। First prize is Nusay Siksa from Government Secondary School Final. So Nusay, please come and receive your prize. देखिए। So thank you, sir. So once again, hearty congratulations to all the winners and all the participants. Now, this man to share a few words with our students and participants present here. Good afternoon to all of you. Most respected ADC sir, our today's chief guest, our learned resource persons, ADC sir, my dear staff, student participants, and all those who are present in this small gathering. Indeed, this is the most busiest period in the education department. All the exams, one after the other, are coming, starting from this state board exams, class 9, 11, 5 to 8, and again home examination for class 1 to 7. But still, despite all these exam routines, we have to conduct these programs which is related to drug abuse, which is the burning topic and the worst, the most challenging problem of the society, especially concerning the students, the youths, which is a big headache for the parents, for the teachers, and as a whole for the society. Drug abuse is not only abusing oneself, it is abusing us all. Because of this drug abuse, so many anti-social activities take place. Many houses, many families are looted. We are struggling indeed to root it out, which is quite tough. And for this, we need the cooperation of everybody. This is not a simple problem. It is not a simple challenge.
We all need to come together to root it out. Especially, we are really worried for the students whose life, whose career is just beginning. If such a trend continues, then it will really disturb everybody. Students are not able to concentrate on their studies. They are not able to concentrate on their exams. Parents are crying. We can see, and all those who are drug abused, they go to the rehab. They think that they are okay and come back home. Again, the same condition, the same environment, the same monotony continues in the family, in the society. And this type of disease, it relapses. And they go back. It seems that there is no end to this problem. But still, our struggle will also continue. And maybe not abruptly, but step by step, slowly. Though it may take time, we may be able to root it out. The day we see the day that our society is free of these drug addicts, then that day will be the happiest moment for all of us. Indeed, in spite of so much of tight schedule, for the sake of these drug addicts, for the sake of our children, our resource persons, they have also taken the pain, they have taken the time to prepare all the whatever they have shown, whatever they have said, whatever they have taught, whatever they have made aware of. We are really very grateful to them, and we are glad that they all could come, they all could manage some time and spread the awareness of the evil effects of this drug abuse. And my staff has also taken a lot of pain in spite of so much of work, because once we are ordered, we have to carry out the order also. We cannot say no. So we also gathered, decided the time, prepared the schedule, and today we are conducting the program with the hope that at least some positive effects will be there in the minds of the drug abuse people. In fact, this program is meant for the secondary to higher secondary level, and those who have come here hope they will go and spread the message to their friends, to their relatives, even to their families. They should go and spread it. So, within this short span of time, this is the only thing we can do, that we will go and spread the message. So, without taking much time, I will wind up my short speech here. And I thank you, all of you, for coming here, especially this ADC sir. In spite of his such a busy and tight schedule, he has
managed to come and be with us, among us. And other resource persons also, and even a media person who is also every time wherever there is a program, he has to go and capture all the. So hope he is in good health. Thank you. So all of you, thank you once again. So thank you, ma'am, for your inspiring words. Now, without wasting our time, so let us proceed to the next. And first prize is Nusay Siksa from Government Secondary School Final. So, Nusay, please come and receive your prize. देखिए Some members of Siksa to share a few more with our beloved students. A very good afternoon to all of you. Most respected DDSC madam, resource person from ISSC, teachers and all the staff of Education Department, IPR resource person, and all my dear students. So as DDSC madam and all the previous speakers have said that this is very disturbing and very pressing issue that we are facing currently in Arunachal Pradesh as whole and ACL in particular. And we keep on doing these programs wherein we create awareness among the populace regarding these issues, regarding the side effects of drug abuse. And in today's program itself, you can see that it is written there, no drugs, which means say no to drugs. As somebody has written in their essay also, that it is not courageous to try the new substances, to try the drugs, but it is more courageous to say no to those despite of peer pressure and despite of when your friends kind of tell you to try it for once, and the real courage lies in saying no to that. So I would like to share one story with all of you guys, because I think whatever I intend to say in my speech, you guys have already written in your essays. You know all of these, you know all about the side effects, you know all the way out about that. So I would just like to share one story. So there were two brothers, they were twins actually. तो बचपन से ही उनके जो फादर थे उनको ही वाज एक मतलब बिग टाइम एल्कोहलिक, हमेशा दारू पी के रहते थे, नशे करते थे, और उनके घर की जो सिचुएशन थी, जो स्थिति थी, वो बहुत ही ख़राब थी, बिकॉज वो सारा टाइम दारू पी के रहते थे, कोई काम काज नहीं करते थे, घर पे आना, उनकी माँ को पीटना, बच्चों को पीटना। तो ये सब उन्होंने दोनों भाइयों ने बचपन से ही देखा। वो दोनों जुड़वा थे, ट्विन थे, तो साथ में पले बड़े, साथ में बड़े हुए। तो जब बड़े हुए तो 20-25 साल के बाद जब अपने अपने लाइन में वो चले गए, तो उनमें से एक जो था वो बहुत ही सिंसियर, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड ऑफिसर बना, सरकारी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। और जो दूसरा था वो गुंडा, दारू पीने वाला, चोरू चक्का, उस तरह का बना। तो आप इस चीज़ को देखिए कि एक ही घर से दो लोग आए, एक जो पुलिस ऑफिसर बना और दूसरा जो अपने ही बाप की तरह दारू पीने वाला और चोर बना। और जब उस चोर को जब सज़ा हुई, पकड़ा गया कभी चोरी करता हुआ और उसको जेल में डाला गया, तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था वो उसी का भाई था। तो एक भाई देखिए पुलिस में था, ऑफिसर था, और दूसरा भाई जो था वो उसी पुलिस ऑफिसर के अंडर एक जेल में था, पड़ा हुआ किसी चोरी के जुर्म में। तो जब एक बार एक इंटरव्यू के टाइम पे कोई रिपोर्टर आया, हमारे गवांग सुल्फा जैसा ही, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप लोग दोनों भाई हैं, लेकिन एक जो है वो पुलिस ऑफिसर और दूसरा चोर, ये कैसे हुआ? तो उस पुलिस ऑफिसर ने उस रिपोर्टर को बताया अपने घर की सिचुएशन, अपने बचपन की कहानी उसको सारी बताई कि मेरा जो बाप है वो इस तरह से दारू पीने वाला था, पूरा नशा करता था, जब भी घर पे आता था हमें मारता था, पीटता था।
तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने बाप के जैसा नहीं बनूंगा, मैं कुछ अच्छा करूंगा और अपनी फैमिली की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको सुधारूंगा। और दूसरे को जब उसने पूछा, चोर को जाके उस रिपोर्टर ने दोबारा ऐसे पूछा कि तुम्हारा भाई इतना बढ़िया पुलिस ऑफिसर है और तुम चोर कैसे बन गए? तो उसने बोला कि मेरे घर की जो सिचुएशन है वो बहुत खराब थी, मेरा बाप शराब पीता था, नशे करता था, तो उसको देख के मैं भी ऐसा बन गया। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस जो है वो सेम हो सकते हैं, और उन्हीं सर्कमस्टांसेस और सिचुएशन से निकल के आपको किस राह पे चलना है और कैसा बनना है वो आपके हाथ में है। सो सेइंग नो टू ड्रग्स, जो पुलिस ऑफिसर बना उसने बोला कि मैं नशे नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने घर की हालत, अपनी फैमिली की हालत और अपना फ्यूचर जो है उसको सुधारना चाहता था। और दूसरा जो था, उसने देखा कि बाप नशे करता है तो मैं भी नशे कर लूंगा, कोई ऐसा बुरी बात नहीं है उसमें, और उसका फ्यूचर जो है वो वहीं पे खत्म हो गया, खराब हो गया। तो इसीलिए जब हम बोलते हैं कि से नो टू ड्रग्स, सो इट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स when and how you want to say no to drugs. आप लोगों को, जैसे कि मैंने I was going through the essays and I was really surprised. मैंने तो 3 ही देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आई एम क्वाइट श्योर कि बाकी के एसेज में भी बहुत अच्छे होंगे, आप सभी ने बहुत अच्छे से लिखा होगा। और उसमें मैं देख रहा था कि आप लोगों ने पर्टिकुलरली जो TCL का रीजन है उसकी वल्नरेबिलिटी के बारे में लिखा है कि हमारा अरुणाचल एज ए होल तो वल्नरेबल है ही ड्रग्स के लिए, लेकिन जो हमारा TCL रीजन है वो ज़्यादा वल्नरेबल है, बिकॉज जो हमारा प्रॉक्सिमिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ, म्यांमार के साथ, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि 2 एसेज में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वर्ड का मेंशन किया है, गोल्डन ट्रायंगल। सो गोल्डन ट्रायंगल आर बेसिकली 3 कंट्रीज, कंबोडिया, लाओस एंड म्यांमार। वो एक तरह का, इस तरह का जियोपॉलिटिकल मैप एक ट्रायंगल की शेप में बनता है। तो वहाँ पे जो है वो प्रोडक्शन जो है ड्रग्स का बहुत ज़्यादा है, और वहीं से सारा ड्रग्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, एंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू ऑल द वे टू द इंडिया वो सप्लाई होता है। एंड बिलीव मी, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ऑफ UPSC in 2019, और मैं 10th में 12th में अच्छे नंबर से पास हुआ था, इंजीनियरिंग में मैंने अच्छे नंबर से पास करी थी, लेकिन कभी भी मुझे गोल्डन ट्रायंगल वर्ड मैंने तब तक नहीं सुना था जब तक मैंने UPSC की तैयारी करनी शुरू नहीं करी, बिकॉज UPSC में ये टॉपिक था। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि आप लोग 10th और 12th क्लास के बच्चे हैं और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है कि व्हाट इज गोल्डन ट्रायंगल। एंड सिमिलरली वी हैव वन गोल्डन क्रेसेंट विच इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान ऑन द वेस्टर्न साइड। तो यही 2 मेजर रूट्स हैं ड्रग्स के, जहाँ से ड्रग पूरे कंट्री में सप्लाई होता है। सो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू नोट दैट कि आप स्टूडेंट्स को इस सब बारे में पता है। एंड आप लोगों ने जिस तरह से एसेज में मेंशन करा है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ड्रग्स को लेके, कि ड्रग जो है वो एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, ये एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं है। स्टार्ट ये एज ए इंडिविजुअल प्रॉब्लम होता है, आप पीयर प्रेशर में आके क्यूरोसिटी के चक्कर में आप लोग स्टार्ट करते हैं ड्रग लेना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को कंट्रोल नहीं रहता है, आप लोगों को भी पता नहीं रहता है कि मुझे कहाँ पे स्टॉप होना है, और फिर वो ट्रेन जो है वो निकल चुकी होती है आपकी, और एक बार वो ट्रेन निकल गई तो आपका सारा जो यूथ है वो उसमें खत्म हो जाएगा। तो फिर वही फ्यूचर जो चोर की तरह बन जाएगा, रादर देन बीइंग ए गुड ऑफिसर, आप उस राह पे चल पड़ेंगे। तो सोसाइटल प्रॉब्लम ये बिल्कुल है। आप देखिए, आप उनके जो पेरेंट्स हैं, दे वर्क रियली हार्ड आप लोगों के लिए, उन्होंने आप लोगों को स्कूल में भेजा है, उनके कुछ ड्रीम्स होंगे, होप्स होंगे, एस्पिरेशंस होंगे आप सबको लेके कि आप लोग बड़े होंगे, कुछ अच्छा बनोगे, अच्छा करोगे। आप लोग मोस्ट ऑफ यू माइट कम फ्रॉम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली, बिकॉज हमारा सोशो इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशन जो है हमारी TCL की, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे। तो आपकी फैमिली ने आप लोगों के लिए ड्रीम्स देखे हैं कि आप लोग कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसा अच्छा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी लोगे, अच्छे ऑफिसर्स बनोगे, जिससे ना सिर्फ आपकी बल्कि उनकी भी लाइफ जो है वो सुखी होगी आने वाले टाइम में। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि ये एक सोसाइटल प्रॉब्लम है, इससे फैमिलीज डिस्ट्रॉय होती हैं, जो एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिर्फ आपका जो करियर है, आपका फ्यूचर है, आपके होप्स एंड एस्पिरेशंस है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, आपकी पूरी की पूरी लाइफ, आपके फैमिली की लाइफ, आपके आसपास, आस पड़ोस, पूरे गांव की, पूरे TCL की, तिराप की अगर बात करें, तिराप चांगलांग लॉन्डिंग की बात करें, और एज सच अरुणाचल की अगर हम बात करें, हम ड्रीम करते हैं, हम होप करते हैं, एस्पायर करते हैं टू बी डेवलप, एस्पायरिंग प्रॉस्परस एंड पीसफुल अरुणाचल के लिए हम लोग जो है वो होप करते हैं। लेकिन
जो उसकी उस राह पे चलने पे उस राह पे जो लेके जाएगा अरुणाचल को, वो आप लोग लेके जाओगे। जो यूथ है हमारा आज का, वो लेके जाएगा। आपके हाथ में जो वो कमांड है, वो आपके हाथ में है इस समय कि अरुणाचल को, DCL को, तिराप को, अपनी फैमिली को, खुद को कैसे उस डेवलपमेंट के रोल पाथ पे लेके जाना है। मैं ये बोलूँगा कि आप लोग वो कैंडल हैं जो उस डेवलपमेंट पाथ को लाइट अप करोगे। बिकॉज अगर आप जो है वो खुद को लाइट अप करके उस डेवलपमेंट पाथ पे नहीं लेके जाओगे तो उसके आगे फिर अंधेरा ही अंधेरा है। जनरेशंस एंड फैमिलीज विल डिस्ट्रॉय एंड वी वोंट बी एबल टू, एक बार जो जैसे मैंने बोला कि एक बार वो ट्रेन अगर निकल जाती है तो उसको फिर पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपके अरुणाचल में ही, यहाँ पे तिराप डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पास 3 रिहैब सेंटर हैं। तीनों में मुझे जाने का मौका मिला और जब मैंने वहाँ के जो इनमेट्स हैं हमारे, उनसे हमने इंटरेक्ट किया तो उनके पास रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं था। वो इतना ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे थे और वो यही होप कर रहे थे कि किस तरह से वो जो 10 साल पहले का टाइम है वो उन्हें वापस मिल पाए, और जो उन्होंने वो डिसीजन उस समय ड्रग अब्यूज़ करने का लिया और उसको वो ना लें, सो दैट आज उनकी जो लाइफ है वो डिफरेंट हो। एंड बिलीव मी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट डूइंग द ड्रग अब्यूज़ एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव इट। बिकॉज अगर हम रिहैब सेंटर्स की भी बात करें तो रिहैब में जाता है कोई 6 महीने 3 महीने वहाँ पे रहेगा, उसके बाद वो बाहर आता है सोसाइटी में। लेकिन आप लोग बिलीव करें, उसमें जो रिलैप्स रेट है इट इज़ एज हाई एज 90%। मान लीजिए अगर 100 आदमी मेरा रिहैब सेंटर से बाहर आता है थेरेपी लेके 6 महीने 9 महीने के बाद, उसका रिलैप्स रेट उस 100 में से जो 90 है वो दोबारा they again start doing drug abuse, because it is a very pressing problem, it is very disturbing and it is very difficult to leave once you get into this thing. तो सबसे पहले अपने मन को इतना दृढ़ बनाना है कि हम कभी भी हम ड्रग्स जो है वो नहीं करेंगे, चाहे वो क्यूरोसिटी के चक्कर में, चाहे वो पीयर प्रेशर के चक्कर में। आपके दोस्त आपको बोलेंगे कि ट्राई कर लो, लीव दोज फ्रेंड्स। जो अगर आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ड्रग ट्राई कर लो, एक बार कुछ नहीं होता, मैंने भी किया था, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपको कोई ड्रग ट्राई करने के लिए कोई बोल रहा है और वो आपका दोस्त है, तो बिलीव मी, ही इज़ नॉट योर फ्रेंड। इट इज़ आपको उसी समय ही उसके साथ जो दोस्ती है वो खत्म कर देनी है और उसको सीधा बोल देना है कि यू आर नॉट माई फ्रेंड फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, एंड यू फाइंड दोज फ्रेंड्स हु इंस्पायर यू टू डू समथिंग। ऐसे दोस्तों से दोस्ती करो जो आपको कुछ बोले कि साथ में मिलकर कुछ करेंगे, अच्छे ऑफिसर बनेंगे, ये स्पोर्ट्स खेलेंगे, उसमें अच्छा करेंगे, सिंगर बनेंगे, डांसर बनेंगे। इस तरह के जो आपको ड्रीम्स दिखाता है वही आपका सच्चा दोस्त है। ऐसे ही लोगों के साथ आप लोगों को दोस्ती करनी है। Administration and education department is doing their best to guide you students into the right path which leads to the development. आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम हम प्लान कर रहे हैं कि करियर गाइडेंस जो हैं सेशंस हम वो भी करेंगे। आप लोग जैसे यहाँ पे हमारे अरुणाचल में हमें पता है कि लिमिटेड जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इवन ग्रेजुएशन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जिसमें फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट का स्कोप ज़्यादा है, ये सब चीज़ों का थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस है। सो we'll try to conduct more career guidance sessions in collaboration with the education department, so that आप लोगों को पता रहे जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस आपकी होती हैं वो होती है आपकी 10th और उसके बाद 12th। क्योंकि उसके 10th के बाद आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आपको मेडिकल चूज़ करना है, नॉन मेडिकल जहाँ लिबरल आर्ट्स में जाना है, और उसके बाद 12th के बाद आपको चूज़ करना होता है कि आपको कौन से अच्छे कॉलेज में जाना है और किस तरह के आपके जो करियर है उसको एक्सप्लोर, उसको देखना है कि किस फील्ड में आपको जाना है। तो ये सब में भी आप लोग को जो भी सपोर्ट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ विद यू, एंड आपके जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होंगे उसके बाद हम लोग करियर गाइडेंस सेशन भी रखेंगे आप लोगों को थोड़ा अवेयरनेस करवाने के लिए कि आप लोग किस किस फील्ड में जो है अपने करियर को है एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं और करते हैं, सो दिस इज़ नॉट जस्ट द हार्ड ड्रग्स जो बेसिकली ओपियम, हीरोइन, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो जो भी स्टार्ट करता है वो कभी भी हार्ड ड्रग से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करता, वो कभी भी ओपियम डायरेक्टली नहीं लेगा, वो स्टार्ट करेगा लिकर से, स्मोकिंग से। उसके बाद जो यहाँ पे हमारे देयर इज़ अ कल्चर ऑफ कानी, जो गाँव में लोग कानी पीते हैं वो सब उससे ट्राई करेगा, एंड उसके बाद दे गोज टू द हार्ड ड्रग्स। तो इस चक्कर में क्या होता है कि सोसाइटी में एक तरह का कल्चर सा बन जाता है। जैसे आई हैव नोटिस दिस थिंग इन दिस रीजन कि जो गुटखा खाते हैं वो चबाना इज़ वेरी कॉमन।
बिकॉज काफ़ी लोग चबाते आ रहे हैं और उसे पेरेंट्स को देख के जहाँ दादा परदादाओं को देख के जो बच्चे हैं वो भी स्टार्ट कर देते हैं अर्ली एज में चबाना। तो उससे आप देखिए कि इफ़ेक्ट क्या होता है ओवरऑल सोसाइटी पे। अब जब मैं अपने ही ऑफिसेज में ही जाता हूँ, जब मैं आसपास कहीं जाता हूँ, नज़र मारता हूँ, तो हर जगह पे मुझे रेड स्टेन्स दिखते हैं, सीढ़ियों पे, दीवारों पे, फुटपाथ पे। सो एक तरह का कल्चरल हैबिट बन जाता है। जब आप लोग, हमें पता है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, सब लोग चबाते हैं, तो जब चबाते हैं तो वो कहीं भी उसको स्पिट कर देते हैं। तो उस तरह से एक बहुत ही अनहाइजीनिक सा जो कल्चर है हमारा पूरा, वो बन जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें रोकना है। अगर कोई आपके आसपास अगर करता भी है, आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली रेजिंग दिस इशू इन माई ऑफिस ऑल्सो, बिकॉज देर आर सम पीपल इन आवर ऑफिस ऑल्सो, वो भी करते हैं और वो भी, वहाँ पे भी ऐसी कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं, तो वहाँ पे भी मैं रेज कर रहा हूँ। आप लोगों को भी अगर आपके सामने कोई करता है, थूकता है, तो आप लोग उसको टोकिए, उसको मना कीजिए। और अगर आपके घर में भी कोई खाता है तो उसको बोलिए कि एक प्रॉपर जगह पे जो उसको है वो स्पीड करना है, क्योंकि छुड़वाना उनके हाथ में है, छोड़ना कि नहीं छोड़ना, लेकिन एटलीस्ट जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे वो लोग स्पीड नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज़ें एक कल्चर में आ जाती हैं। अगर वो आप वो करते रहेंगे, उनको देखते देखते आप भी करना शुरू कर दोगे, तो होल ऑफ सोसाइटी में एक ऐसा ट्रेंड बन जाता है। फिर आप देखेंगे कि हाइजीन, जो बेसिक कॉमन हाइजीन, जो बेसिक सिविक सेंस है, वो हमारी खत्म हो जाती है एंड वी स्टार्ट स्पीडिंग हियर एंड देयर। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। इस मंच के थ्रू आई एम अपीलिंग इट टू यू गाइज। एंड finally, I was going through these essays, and these 3 essays I have kind of skimmed through, and they are wonderfully written essays. And as one of our official has already said, that these 3 people are not the winners. Every one of you is winner. It's just that 3 of you are selected for first, second, and third prize, but every one of you who have written this essay against the drug abuse is a winner. And you must celebrate yourself. And I'm very surprised and very happy to see the kind of knowledge you guys have against this major and very pressing issues. And I would request कि ये जो knowledge है, ये लोग इस knowledge को आप लोग अपने लाइफ में यूज़ भी करें, और इस चीज़ पे आप एक अपना एक प्रिंसिपल बना लें, एक अपना सिद्धांत बना लें कि मैं जो मैंने लिखा है, जो बोलते हैं ना कि वॉक द टॉक, जो आपने लिखा है उस चीज़ को आप लोग अपने लाइफ में, अपने करियर में इम्प्लीमेंट भी करें, और कभी भी जो है वो ड्रग्स का यूज़ करने की तरफ ना जाएं, ड्रग्स से दूर रहें। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी सक्सेसफुल फ्यूचर। आप लोगों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, उसके लिए भी आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, एंड लेट्स से no to drugs and yes to life. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspiring words. As a student and an individual, I accept and pledge to follow all rules and laws established by my country regarding the use of drugs. To demonstrate my support, I pledge that I will live a drug-free life. I will show my friends that a drug-free life is more fun. I will not cover up or lie for my friends if any rules are broken, and will hold them fully responsible and accountable for their actions. I will seek information and assistance in dealing with my own or my friend's problem relating to drugs. I will not accept the use or sale of drugs in the community. I will be honest and open with my parents about my feelings and problems. I will work with others to help spread the truth about drugs. So together we will create a drug-free community. I pledge to support India's
national anti-drug campaign by taking a stand against alcohol and drug abuse. Jai Hind.